Hello guys, welcome to the channel CEO Statistics. So in the previous videos I have talked about probability, so many terms related to probability, random experiment, non-random experiment. Those who have not watched the video, please watch that video. Now, in this video, I'm going to talk about the definitions of probability. There are certain definitions of probability which we will learn in this video. So, the first definition of probability, that is classical definition of probability. The second definition is statistical definition of probability. And the third definition is axiomatic definition of probability. So let's proceed to what is classical definition of probability. So classical, that is mathematical definition of probability. So what is classical or mathematical definition of probability? So the definition says that if a random experiment or trial results in an exhaustive, mutually exclusive and equally likely outcomes, out of which m are favorable to the occurrence of an event E, then the probability of occurrence of event E is given by number of favorable cases divided by total number of exhaustive cases. This is the basic definition of probability which we use to find in problems. Means we will divide the number of favorable cases and total number of exhaustive cases. For example, in one bag, there are 5 red balls and 7 blue balls. And if you have to find the probability of red balls, then you can calculate with the help of this formula. So 5 red balls are there and total 12 balls are there. So 5 upon 12 will be the answer. Or if you are tossing a coin contain one side head and one side tail. So if you have to find the probability of head, there is one head and there are 2 total cases. So the probability will be 1 upon 2. So this definition only tells about how to calculate the probability by using formula in a mathematical way. So we just find the number of favorable cases and we find the total number of cases and we divide it. In this way we can calculate the probability of any event. This definition was given by James Bernoulli, and in this definition we don't conduct any experiments. Without any experimental data, we just find the probability prior. So it is known as a priori probability or mathematical probability. तो बेसिकली क्लास इस प्रोबेबिलिटी में हम लोग फेवरेबल केसेस निकालते हैं और टोटल केसेस निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम फाइंड कर सकते हैं. और इसको हम ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से पहले ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं. बस हमें फेवरेबल केसेस और हमें टोटल केसेस पता होने चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. इस डेफिनेशन को बर्नौली ने दिया था, जेम्स बर्नौली. अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशन मींस डिसएडवांटेज की बात करें, कब कब ये डेफिनेशन फेल हो जाती है, तो फर्स्ट इज इफ़ द वेरियस आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली एंड इक्वली प्रोबेबल. अगर आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं हैं तब ये डेफिनेशन फेल हो जाती है. अगर हम बात करें कि कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% तो नहीं है. क्यों? क्योंकि सक्सेस एंड फेलियर आर नॉट इक्वली लाइकली. If a student has prepared, if a student has given his 100% in exam, he has done a lot of hard work and he is confident enough that he can get more than 50%. So it is not always possible कि आपका सक्सेस और फेलियर हमेशा 50% ही हो, इक्वली लाइकली ही हो सकता है उसने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया हो और वो कॉन्फिडेंट हो कि ही कैन स्कोर मोर देन 80%. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके सक्सेस और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी 50% ही हो. वैसे अगर कोई पर्सन रनिंग ट्रेन से कूद गया तो रनिंग ट्रेन से अगर कोई पर्सन जंप कर गया तो उसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी भी 50% नहीं है. ठीक है, तो in this case classical definition fail.
अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो इफ़ द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ आउटकम्स आर अननोन और इनफाइनाइट, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही नहीं पता होंगे तो आप उस फॉर्मूले में पुटअप ही नहीं कर पाओगे, और जब आप उस फॉर्मूले में पुटअप ही नहीं कर पाओगे तो आप प्रोबेबिलिटी भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर आपके टोटल आउटकम्स अननोन है या इनफाइनाइट है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, that is the statistical or empirical definition of probability. So what does this definition says? This says if an experiment is performed repeatedly under essential homogeneous and identical conditions, then the limiting value of the ratio of number of times the event occur to the number of trials. As the number of trials become indefinitely large, it is called probability. Here we have assumed that the limit is finite and unique. तो बेसिकली वी टेक द लिमिट कॉन्सेप्ट इन दिस प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m अपॉन n। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टर्म्स तक हम उसको रिपीट करते जाते हैं, मीन्स हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, तब हम इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूला इसका है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m अपॉन n। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और हमने कंडीशन ये रखी है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंट जब आप रिपीट कर रहे हो तो वो अंडर होमोजीनस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस में होना चाहिए, मतलब बार बार हमें कंडीशंस चेंज नहीं करनी है। अब इसको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी? तो इन दिस The probability is obtained by repetitive empirical observations, क्योंकि हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक एक्सपेरिमेंटर थे कैरेच, जिन्होंने एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 10 सेट्स लिए इन वर्ल्ड वॉर 2। तो नंबर ऑफ हेड्स का डेटा आपको मिल रहा है 502, 511, 497, 529, 504, 476, 507, 520, 504, 529। उन्होंने एक कॉइन को बहुत बार टॉस किया और उसके बाद उन्होंने 10 सेट्स लिए, और जब उन्होंने प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले के थ्रू निकाली कितनी बार हेड आया और कितनी बार उन्होंने ये प्रोसेस किया, तो उसका आंसर आया 1/2। अब अगर हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन की बात करें तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के लिमिटेशन होते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में नॉट रिमेन आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो तो आपकी कंडीशंस हमेशा एक ही जैसी हों। एंड द लिमिट में नॉट अटेन अ यूनिक वैल्यू however large and may be. Next definition is axiomatic definition of probability. ये एक मैथमेटिकल थ्योरी है, इसमें हम कुछ एक्सियम्स का यूज़ करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। तो इसमें हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सर्टेन एक्सियम्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो definition says let S be a finite sample space and A be an event in S. Then in the axiomatic definition, the probability is a real number assigned to A which satisfy the 3 axioms. Basically हम इसमें 3 axioms लेते हैं। First axiom is axiom of non-negativity, which I have already told कि probability कोई भी event की हमेशा 0 से greater होती है, 0 and 0 से greater होती है, means कभी negative में नहीं जाती है probability। Second is axiom of certainty, certainty probability of sample space, sample space की probability हमेशा 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि अगर हम कोई भी उसमें से इवेंट लेंगे सैम्पल स्पेस में तो वो जो इवेंट है वो उस सैम्पल स्पेस में तो कंटेन कर ही रहा होगा, इस वजह से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आप सैम्पल स्पेस से ले रहे हो उसकी हमेशा 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज 1। ओके, अगर आपने एक डाइस टॉस किया तो डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, तो अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे
पूरे सैम्पल स्पेस की, मीन्स सबकी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और जब आप सबको ऐड करोगे तो द आंसर विल बी 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज 1. फिर है एक्सियम ऑफ एडिटिविटी. एडिटिविटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर आपने दो इवेंट्स लिए और दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट है, तभी उनका ए इंटरसेक्शन भी इनफाइनाइट है, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तब उनकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम निकाल लेंगे. One example I have also given based on the third axiom. Suppose 4 candidates हैं A, B, C and D and they are contesting for an election. A के पास 20% है win होने के chances, B के पास 40% है to chance to win. तो अगर आपको probability calculate करनी है that A और B win the election, तो basically whenever or is used we calculate probability of A union B. दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स. वाई दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स? क्योंकि अगर ए जीतेगा तो बी नहीं विन करेगा और बी जीतेगा तो ए नहीं जीतेगा. तो दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि दोनों में कॉमन नहीं है. ओनली वन कैन विन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4. तो इफ वी एड बोथ ऑफ देम द आंसर विल बी 0.6. तो बेसिकली whether the candidate A will win or B will win, the probability is 0.6. If I talk about the limitations of axiomatic definition, so it can't be calculated through these axioms if the outcomes are infinite or if the outcomes are not equally likely, yeah, if you don't know the total number of outcomes. So if any of these condition apply, अगर इसमें से कोई भी condition apply होगी तो आप axiomatic definition को फॉलो नहीं कर पाएंगे. तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आर द 3 definitions of probability. So students, if you have liked the video, please subscribe to my channel. Do comment in the comment section and please like and please subscribe. Thank you everybody.